Hello, dear students. A very good morning to you all. Hope all you are enjoying the such kind of videos. Fine. We have started with chapter number 2, microorganisms. Fine. Now, in first, second, and third lecture, hope you have seen the videos. Again, you did homework so well. I really appreciate. See, again, what I mean to say is we have to enjoy the videos. Right, in vacation mode it's not that much difficult. We just enjoying the session, and whatever the homework given by me you just have to do. Fine. तो आज शुरुआत करते हैं आगे. Okay, fine. In last lecture we have studied about how microorganisms are useful. First 4 points that we have discussed. Point number 1, microorganisms are very widely used to prepare bakery items, bread, cake and all that part. Second is very important, microorganisms are used as antibiotics. Again, microorganisms are used to clean the atmosphere, environment, very important. तो ये सब 1 से 4 पॉइंट देखने के बाद शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 5. Fifth point is, in agriculture they are used to increase the soil fertility by fixing the nitrogen. See, some of the microorganisms, what they are doing is they just take up the atmospheric nitrogen. We all know very well nitrogen is a gas, and you will be surprised, maximum percentage available in the atmosphere is 78%, that is nitrogen gas. Unfortunately, a huge amount of nitrogen gas is there in the atmosphere, but we cannot use the nitrogen gas directly. हम nitrogen gas directly use नहीं कर सकते. There are so many compounds which are made up of nitrogen. As we have discussed in very first lecture, that for growth and development of body we require the nutrients, जैसे carbohydrate, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, डीएनए इनफैक्ट दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, ये सब में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन है. बट टू प्रिपेयर ऑल सच थिंग्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, इनफैक्ट न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब डायरेक्टली नाइट्रोजन में से नहीं बनता. फाइन. ये नाइट्रोजन कौन यूज कर सकता है सबसे पहले? तो अगेन बैक्टीरिया प्लेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. सम ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, they have ability to take the nitrogen from the atmosphere, and what they will do, they will utilize this nitrogen and they will convert this nitrogen gas into some chemicals. Later on we will discuss in nitrogen cycle that how nitrogen, again the percentage of nitrogen becomes constant. When I was in 9th standard, 8th standard, again the same percentage was there, that is a 78%. Today you are studying, again a 78% is there. So what I mean to say, same percentage of nitrogen remains constant. What this indicates? This indicates that there should be some factors which are involved to maintain its concentration. Okay, now जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है पिक्चर में कि कुछ बैक्टीरियाज है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और दे फिक्स द नाइट्रोजन इन द रूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट. वी ऑल नो वेरी वेल, वी ऑल आर फैमिलियर विद द पल्सिस, जिसे हम कठोल बोल रहे हैं, पल्सिस, राइट. तो पल्सिस जब ग्रो होते हैं तो उसके रूट नोड्यूल्स जो बिल्कुल जमीन के अंदर होते हैं, रूट नोड्यूल्स. फाइन. द प्लांट जो जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज अ लेग्यूमिनोस प्लांट. यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड. अगेन सिंपली आई कैन से पल्सिस. पल्सिस जब ग्रो होते हैं तो उनके रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया छुपे होते हैं. ये बैक्टीरिया का एक ही काम है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को वो ले लेते हैं और वहां पे वो फिक्स करते हैं. एंड हेंस दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. वो फिक्स करते हैं. ओके, चलो, यू विल बी सरप्राइज, सर विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर वी टॉकिंग अबाउट. तो बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, इट इज वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये बैक्टीरिया है, दैट इज द राइजोबियम फैमिली. राइजोबियम करके बैक्टीरिया है. नॉट ओनली दैट, कुछ ब्लू ग्रीन algae, जैसे मैंने ये पर दिखाया है,
right? This is green algae, very nicely you can see in the video, because in textbook they have not given the diagram properly, so I have mentioned here, right? You have to read this PDF, that's it. I will send the PDF as well. This is blue algae, how it is growing, you see, and this is a green algae, right? वो भी काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने का, ओके? तो ये बैक्टीरिया है, राइजोबियम भी बैक्टीरिया है। तो ये कहाँ रहते हैं? पल्सिस के जो रूट नोड्यूल्स है उसमें वो बैक्टीरिया छिपे होते हैं। उनका काम ही यही है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसी भी तरह से ले लिया जाए और उनको एस्टैब्लिश कर दिया जाए प्लांट में, ताकि बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे कुछ यूजफुल नाइट्रोजीनियस केमिकल में। नाउ केमिकल्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं है, अनदर इज ऑर्गेनिक। प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन है उसमें, राइट? नाइट्रोजन तो है ही है, बट वो डायरेक्टली नहीं बनता है, प्लांट अब प्रोसेस करेगी। बैक्टीरियास ने क्या किया, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया कुछ केमिकल्स में, नाइट्रोजीनियस केमिकल्स यू कैन सिंपली से। यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड व्हाट दिस केमिकल्स आर, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, बट अभी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? इतना याद रखो, नाइट्रोजन को उन्होंने कन्वर्ट किया सिंपल केमिकल में, बस। फिर प्लांट क्या करेगी, वो केमिकल्स यूटिलाइज करेगी। प्लांट क्या करेगा, ये केमिकल्स को यूटिलाइज करेंगे और उसमें से क्या बनाएगा, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हम यूजुअली फाइंड करते हैं पल्सिस में। क्यों हम खाते हैं पल्सिस भाई? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज उसमें क्या रहता है, प्रोटीन। You all are familiar कि protein amount is high. You must be familiar with one word that is joint pains. अगर आपको पता हो तो, right? Joints में पेन होता है तो उन लोगों को प्रोटीन कंटेनिंग डाइट डॉक्टर मना करते हैं। क्यों? जितना प्रोटीन वाला डाइट ज्यादा खाओगे उतना जॉइंट्स पेन बढ़ेगा, ओके? तो व्हाट आई मीन टू से, एट अ यंग एज वी ऑल हैव टू टेक इनफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? आपको कहीं ना कहीं पल्सिस खाने पड़ेंगे, राइट? पल्सिस आप खाते हो तो डेफिनेटली प्रोटीन्स हम ले रहे हैं। तो प्लांट में जो प्रोटीन बने हैं, नाइट्रोजन कंटेनियस प्रोटीन, वो हम किस में डायरेक्टली आ गए, ह्यूमंस पे, यानी कि हम ले रहे हैं वो नाइट्रोजन एज अ डाइट। तो अब वो जो नाइट्रोजन एटमोस्फियर में था, वो गैस फॉर्म में था, वहां से क्या किया, बैक्टीरिया ने एस्टेब्लिश किया। बैक्टीरिया से वो नाइट्रोजन केमिकल्स सिंपल बनाया बैक्टीरिया ने, प्लांट ने क्या किया, सिंपल नाइट्रोजनियस केमिकल में से प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन हमने खाया, फाइन। तो यू सी, अब एट दिस लेवल यू विल बी वेरी क्लियर कि वो प्रोटीन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में चले गए, अपनी ह्यूमन बॉडी में, फाइन, ओके। और आगे हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल, ओके। सो इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये इतना ही पॉइंट याद रखना है, ओके। बट उसके साथ टेक्स्ट बुक में एक लास्ट टॉपिक दिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग करके, तो इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो डेफिनेटली आई शुड टेक हियर, व्हाई नॉट, फाइन, ओके। चलो, नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत ही बड़ी शॉर्ट नोट है दैट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, नाइट्रोजन साइकिल्स जो है उसके 10 पॉइंट याद रखने हैं, 10 पॉइंट्स। सो यू विल बी सरप्राइज, सर हाउ कैन वी रिमेंबर दैट। मगअप नहीं करना है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप्स आई विल एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 1, एटमोस्फियर में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, 78%, ओके। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, सब में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन साइकिल में ये जो 2 पॉइंट है दैट इज पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है नाइट्रोजन साइकिल का, व्हाई शुड वी लर्न नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन कहां से आता है और वापिस एटमोस्फियर में क्यों सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विल बी मेंटेन, हाउ कैन दैट इज पॉसिबल, कहां से यूज होता है नाइट्रोजन, कहां चला जाता है, कहां से कहां वापिस एटमोस्फियर में वो चले जाते हैं। लेट वी सी, ओके। Point number 3 says that the atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animal. What I told just few minutes before कि एटमोस्फियर में जो भी नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली हम नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज रिक्वायर्ड विच कन्वर्ट्स
atmospheric nitrogen into some chemicals and establishing those chemicals in the plant. Okay, look at that. Point number 4. Certain bacteria, that is rhizobium and blue-green algae present in the soil, fix the nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen. नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट? और वो केमिकल्स है जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है. आप लोग सरप्राइज हो गए कि सर सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ी? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अब कन्वर्जन हो गया है नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स, और वही केमिकल्स प्लांट ले सकते हैं. तो प्लांट के ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिएंट्स मिल गए डायरेक्टली, एंड हेंस द सॉइल फर्टिलिटी विल बी इंक्रीज. वो सॉइल में प्लांट जल्दी ग्रो होना चालू करेंगे. Okay, so once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by the plant from the soil through their root system. use कर सकते हैं. Okay, अब point number 6, this is what we have to understand. You see, चलो नाइट्रोजन साइकिल में ही आपको बता दूं. Now is it visible? Okay, fine. एटमोस्फियर में जो नाइट्रोजन है, ये चार्ट याद रखना है. इट इज गिवन इन दी बुक, इन एग्जाम दे ऑल्सो आस्क. और आपको होमवर्क में इसी तरह से ड्राइंग अच्छा, जितना इनोवेटिव ड्राइंग कर सकते हो करो. दैट इज अ एडिशनल होमवर्क इन फ्रॉम टुडेज लेक्चर. ओके, एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन जो है, ओके, वो पहले कहाँ चला जाता है? तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग. क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग. उसके बाद ये बैक्टीरियाज ने क्या किया? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिए. मैं जहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं वहां से ही शुरुआत करो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर लेफ्ट हैंड साइड. ये जो फर्स्ट एरो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, वहां से ये नाइट्रोजन किसने यूज किया? बैक्टीरिया ने. बैक्टीरिया ने यूज करके क्या बनाया? तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड. वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कहाँ चले गए? तो सॉइल में, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े. अब देखो, मैं जिस तरह से जा रहा हूं उस तरह से ही आपको लर्न करना है. यहां से एक एरो ऐसे बनाना है ताकि ये नाइट्रोजन जो सॉइल में है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में, दैट इज अपटेक बाय दी प्लांट्स. वो कौन ले लेते हैं? प्लांट्स. प्लांट में से वो केमिकल्स कहाँ गए? एनिमल्स ईट दी प्लांट्स. ओके, एनिमल्स प्लांट खाते हैं, फिर हम जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, आइदर यूरिन, मेनली यूरिन, राइट, एक्सक्रिएशन, राइट. तो यूरिन में ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स वापिस चले जाते हैं. सारे एनिमल्स के जो एक्सक्रीटा है, यूरिन है, राइट, वो उसमें भी क्या होता है? नाइट्रोजन. वो भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है. यू विल बी सरप्राइज अगर आपको पता हो तो 7th स्टैंडर्ड में आ गए कि प्लांट और एनिमल्स के जो एक्सक्रीटा है, राइट, वो मैन्योर बनाने में यूज होता है, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं खातर, राइट, एंड दैट श्योरली इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी. ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ, ये एक छोटी सी अंदर एक साइकिल बनानी है. नाइट्रोजन सॉइल में से कहाँ चला गया? प्लांट में, प्लांट में से एनिमल में, एनिमल में से वापिस निकल गए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और वो वापिस सॉइल में आ गए. और यहां से सॉइल में आ गए, यहां से नाइट्रोजन जो है, अब नाइट्रोजन वापिस केमिकल के फॉर्म में है, सॉइल में आया है, तो भाई, राइट, वो प्लांट तो यूज कर ही सकता है भाई. बट अगेन सर्टेन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास करके, आपको याद नहीं रखना है नाम, स्यूडोमोनास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सॉइल में नाइट्रोजनस केमिकल से उसको वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो यू सी द स्टार्टिंग ऑफ स्टेप इज डन बाय बैक्टीरिया, the end is also done by the bacteria. And see, we are talking about importance of bacteria in our life, right? So we can surely say a typical group of bacteria plays very important role to establish the nitrogen. वो नाइट्रोजन एस्टेब्लिश करेंगे तो ही प्लांट में चला जाएगा, प्लांट में से एनिमल में, एनिमल में से ह्यूमन में. फॉर एन एग्जांपल, ह्यूमन में से वापिस वो चले गए एटमॉस्फेयर में, राइट. लेकिन वहां पे भी किसका रोल है? नाइट्रोजन का रोल. ओके, ये सिंपल साइकिल 8th स्टैंडर्ड में लर्न करनी है. सेम टॉपिक यू विल स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड, बट फंडामेंटली यू शुड बी वेरी क्लियर. 9th स्टैंडर्ड में क्या एडिशनली ऐड हो गए? ये प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? तो नाइट्रोजन ऐड होते हैं तो उसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं. नाइट्रोजन चला जाता है तो उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. अब भी याद नहीं रखना है, बट एज अ पार्ट ऑफ क्यूरियोसिटी आई हैव टू से. ओके, तो चलो फ्रेंड्स, वापिस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आ गया. यही मैंने मेंशन किया है
पॉइंट्स में। एक और चीज बताना चाहूंगा कि एक ये छोटी सी साइकिल है, यहाँ पे मैंने लिखा है लाइटनिंग। लाइटनिंग यानी कि जो बिजली के कड़ाका होता है वो, राइट, लाइटनिंग। उसमें क्या होता है, लुक एट दैट पॉइंट नंबर 6, द इनॉर्मस एनर्जी ऑफ लाइटनिंग ब्रेक्स। जब बिजली गिरती है तो उसमें से एनर्जी से नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में वो मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं एंड इनेबल्स देयर एटम्स टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन। फिर नाइट्रोजन टूट गया, मॉलिक्यूल्स टूट गया तो एटम बन गए, और वो एटम किसके साथ जुड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। दिस डिसॉल्व इन रेन एंड फॉर्मिंग नाइट्रेट्स दे कैरिड थ्रू द अर्थ। यानी कि लाइटनिंग इज अगेन वन मोर प्रोसेस। बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, सॉइल में नाइट्रोजिनियस केमिकल्स चले जाते हैं, राइट। तो एक और चीज बताना चाहूंगा, आपको साइकिल्स ऐसे ही याद रखनी है। किस तरह से, जस्ट मेंशन फर्स्ट बॉक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वहां से लेफ्ट साइड चले जाओ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय द बैक्टीरिया, वहां से नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स बने, वहां से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हुई, वो प्लांट ने यूटिलाइज किया। फिर एनिमल में, फिर एनिमल एक्सक्रीटा मीन्स एक्सक्रीशन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो वापिस सॉइल में चली गई, और वहां से कुछ बैक्टीरियाज उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल नाइट्रोजन के फॉर्म में, और वो नाइट्रोजन कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में वापिस। तो एक ये सिंपल साइकिल। सेकेंड इज लाइटनिंग वाला पॉइंट, इसलिए मैंने बीच में लाइटनिंग वाला, टेक्स्ट बुक में ये जो पॉइंट है इट इज नॉट गिवन इन दी टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट आप लोगों को याद रखना है क्योंकि साइकिल में ये चीज दी है लाइटनिंग। तो यू विल बी सरप्राइज, सर लाइटनिंग का क्या रोल होगा। तो लाइटनिंग से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से वो टूट जाते हैं, फिर वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या एटम्स में कन्वर्ट होते हैं, वो एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, बनते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, राइट। वो ऑक्साइड्स पानी में डिजोल्व हो गए, बन गए नाइट्रेट्स, और वही नाइट्रेट्स सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, right? So by that way bacteria are very useful, I say, right? Nitrogen is then used and for the synthesis of plant protein and other compounds. Animal feeding यानी कि प्लांट में जब ये प्लांट्स कौन खा रहे हैं, एनिमल, okay, to get these proteins and other nitrogen. When plants animals die, bacteria and fungi present in the soil convert nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by the plant again. Certain other bacteria, ये जो मैं बैक्टीरिया की बात बोल रहा हूँ वो certain other bacteria convert some part of them into the nitrogen gas. ये वो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास जो मैंने बताया, वो यू विल स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड, नेम ऑफ बैक्टीरिया अभी याद नहीं रखना है, राइट। तो आपको नाइट्रोजन साइकिल का ये चार्ट याद रखना है। चार्ट में से आप अपने हिसाब से पॉइंट मेंशन कर सकते हो। नंबरिंग इसलिए मैंने दिया है ताकि याद रहे। अब समझ लो एक्चुअल साइकिल कहाँ से शुरू होती हो, तो 1 से 3 पॉइंट तो केवल इंपॉर्टेंस में ही चले गए। पॉइंट नंबर 4 से एक्चुअल साइकिल शुरू हो रही है कि सर्टेन बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन algae present in the soil fix the nitrogen and convert into the compounds of nitrogen. फाइन, वो नाइट्रोजन यूटिलाइज हो गया। फिर लाइटनिंग वाला पॉइंट, देन दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। वो प्लांट्स कौन खा रहे हैं, तो एनिमल्स। तो नाउ दोज प्रोटीन्स विल बी गो इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। जब एनिमल्स वो सब मर गए तो उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट में से कुछ बैक्टीरिया उनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में, और अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दे कन्वर्ट्स नाइट्रोजिनियस कंपाउंड इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस। तो शुरुआत में भी बैक्टीरिया, अंत में भी बैक्टीरिया। यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन अवर लाइफ। दिस इज द लास्ट पॉइंट विच आई हैव मेंशन इन दिस लेक्चर। मैंने बोला था 6th पॉइंट जो है वो तो ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है कि केक वगैरह बनाने में, नाइट्रोजन केक वगैरह बनाने में ये यूजफुल होता है। कौन, बैक्टीरिया, फाइन। बट 1 से 5 पॉइंट जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में मेंशन किया था, यू सी पॉइंट नंबर 1 क्या था, लेक्चर नंबर 2 पॉइंट नंबर 1, जस्ट अ सेकेंड, राइट। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड एंड केक। नंबर 2 दारू बनाने में, एसिटिक एसिड विनेगर बनाने में, साउथ इंडियन आइटम्स के बारे में बात की थी। नंबर 3 क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, लास्ट टाइम डिस्कस किया था।
लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट डिस्कस किया था और हम वो और ये आज के कंसेप्ट डाउट सेशन डिस्कशन में हम फेस टू फेस बात करेंगे कि एक्चुअली ये वो क्या है. यू विल बी सरप्राइज, थोड़ा बहुत डाउट होगी तो डेफिनेटली वी विल सॉल्व in the doubt section. Bacteria are also used in preparation of medicines. आज ये point discuss किया. Okay, they are used to increase the soil fertility. और चीज और ये सब फूड आइटम बनाने में बैक्टीरिया का यूज होता है वो तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया है. ओके फाइन. तो ये ओवरऑल अगर आई से यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस 5 पॉइंट्स. बट नाइट्रोजन फिक्सिंग के साथ मैंने एडिशनली आज कवर किया, दैट इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. Okay, so you have to write nitrogen cycle with all 10 points. You have to draw not simply what I have mentioned in the PDF. उस हिसाब से draw नहीं करना है. Simple ऐसे ही बुक में बना दिया. It's not like that. I want your creativity. I am very sure that you all are intelligent. You are highly creative, right? डिफरेंट कलर्स यूज करो, डिफरेंट कलर पेपर. अगर घर पे है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन है भाई, नहीं जाना है बाहर. नहीं सर ने बोला है कि ये करना है, इट्स नॉट लाइक दैट. रिमेंबर वन थिंग, घर पे स्केच पेन कलर और वो सब है तो उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ ताकि हमें इजीली याद रह जाए. ओके, अल्टीमेटली आवर पर्पस इज व्हाट, लर्न विद द फन. हम मजा ले रहे हैं और साथ साथ में पढ़ाई भी तो हो रही है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. फाइन. तो होमवर्क में ये 10 पॉइंट एक बार ये चार्ट इनोवेटिव तरीके से भेजना है. जल्दी से 1 बजे लेक्चर देख लिया और यू बना के भेज दे. इट्स नॉट लाइक दैट. टेक योर टाइम, राइट. पूरा एक दिन लो, बट आई वांट दिस चार्ट मोर क्रिएटिव. फाइन. और उसके साथ ये भी लिखना है, पीडीएफ में है वो, कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. ये 3 पॉइंट. ओके फाइन. So dear students, hope this is the first time I tried this software, so hope you will like this. You just message in the group how this is more effective. Fine. The video which I have prepared, right, using different software, you just comment on the WhatsApp group. Fine. Thank you so much.